with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Created all of us, only you can quench our thirst. Lead us the path of righteousness and bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Created all of us, only you can quench our thirst. Lead us the path of righteousness and bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within.
blessings. Prabhu shower us with your blessings. Prabhu shower us with your blessings. You're our heavenly Bhagavan. Help us to love everyone. Rid our hearts of jealousy and let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Mahesh and Vishnu, your love is pure and true. Help us to protect our dharma and purify our karma. Prabhu, purify our karma. Prabhu, purify our karma. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, तेरा ब्रह्म ज्ञान व्यापक था, व्यापक है, व्यापक रहे। ब्रह्म ज्ञान रूपाय विश्वोत्पत्त्य तापत्र विनाशाय आदि श्री वयं नमः। जो ब्रह्म ज्ञान रूप हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा तीन तापों को नाश करने वाले हैं, उस ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को हम नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, काल प्रशासन की प्रेरणा से मैं आपसे मंत्रणा करने आई हूँ।
O son of God Adi Shri Arun, I have come to consult you with the inspiration of Kal administration. हे देवी, मंत्रणा कक्ष में आपका स्वागत है। हे देवी, वेलकम टू द कंसल्टेशन रूम। अब आपको आज से ही कली पुरुष से टक्कर लेने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आई हूँ। अब आप कली पुरुष तथा उनके प्रतिनिधि का विनाश करने के लिए अपने योद्धाओं को आदेश दीजिए। अब आप लोगों को उपदेश देने में समय को बर्बाद नहीं कीजिए। Now you should start preparing to compete with Kali Purush from today itself. That's why I have come to your service. Now you order your warriors to destroy Kali Purush and his representative. Now don't waste your time giving instructions to people. आपने काल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए समय से मुझको अवगत कराया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को उपदेश करने में समय की बर्बादी नहीं हो रही है। मेरा यह अवतार संपूर्ण प्रेम का अवतार है। यह समय तो मुझे मेरे भक्तों के बीच प्रेम लीला का है, जिसमें लोगों को महसूस करवाना है कि सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य ने नहीं। मनुष्य तो बाद में प्यार किया। पूरा जगत ही उनके प्रेम के आकर्षण का परिणाम है। You have made me aware of the time fixed by the Kal administration. It is a very good thing. There is no wastage of time in preaching to the people. This incarnation of mine is embodiment of perfect love. This is the time for me to play love among my devotees, in which I have to make people realize that first of all God loved man and not man. The whole world is the result of the attraction of this love. परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? But what is its purpose in today's politics? उसका प्रयोजन है मनुष्य को यह सिखाना है कि प्रेम के बिना सृष्टि नहीं है, और यदि सृष्टि हो भी गई तो प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। केवल राजनीति ही जीवन को पूरा नहीं करती और ना ही वह जीवन का लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू होता है। Its purpose is man has to learn that without love there is no creation, and even if the creation is done, then without love the life of man is incomplete. Politics alone does not fulfill life, nor is it the goal of life. The ultimate goal of the life is love, only love, because from there the path of devotion begins. वो सब तो ठीक है, परंतु आज के समय में अमेरिका तो सुपर पावर है ही, लेकिन अमेरिका को छोड़कर 3 और देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। आज की राजनीति ये कहती है कि अनेकों परमाणु बम से विकसित शक्तिशाली कई देश हैं जिस पर कली पुरुष के प्रतिनिधि का शासन है। वह इस धरती को मनुष्य शून्य बना देने के लिए तैयार बैठी है। वह देश इस धरती को मनुष्य विहीन कर दे, उससे पहले इस शक्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। That's all fine, but in today's time, America is a superpower. But except America, 3 more countries are dreaming of becoming a superpower. Today's politics says that there are many powerful countries developed with many atomic bombs which are ruled by the representative of Kali Purush.
She is sitting ready to make this earth human void. These powers should be destroyed before those countries make this earth humanless. उसका समय आने तो दीजिए. Let this time come. पर वो समय कब आएगा ईश्वर पुत्र? But when will that time come, Son of God? आने ही वाला है, परंतु अभी नहीं. अभी तो ईश्वर पुत्र आदि श्री के संपूर्ण प्रेम लीला का समय है. विनाश का लीला आरंभ करने से पहले ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और प्रेम ही जगत का सार है. It's about to come, but not now. Now is the time for the complete love Leela of Son of God Adisri Arun. Before starting the Leela of destruction, the Son of God Adisri Arun wants to give this message to the human beings that ultimately love is the basis of the creation and love is the essence of the world. प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार. आदि श्री की परम कृपा से, आदि श्री की परम कृपा से हो जाए भव से पार. प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार. प्रेम के रस्ते पर चल कर ही, प्रेम के रस्ते पर चल कर ही अमृत सागर नदियाँ आए, अमृत सागर नदियाँ आए. इस नदिया से आगे चल के, इस नदिया से आगे चल के प्रेम के सागर में खो जाए, प्रेम के सागर में खो जाए. भक्ति के संग संग मुक्ति भी है, भक्ति के संग संग मुक्ति भी है. हो जाए भव से पार. प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार. वाह वाह, आपके जैसे संगीतकार के संगीत के शब्दों में उस परम शक्ति की कैसी व्याख्या है. वास्तव में संगीतकार की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघ कर उस परम शक्ति को देख सकती है कि वह शाश्वत है. वाह! What is the explanation of the supreme power in the words of music? The words of music of a musician like you
In fact, only the foresight of the musician can transcend the limits of the time and see the supreme power that is eternal. बजाओगे राधा गोरी ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे झिलमिल कर प्यारे सुंदर राजकुमार बनकर नाच करते हैं हिलमिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे शाम से, राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसात, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसात हैं। सिर पर मोर मुकुट धारे, बेकल कल जमुना की
कुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसातें, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं। हीरो के महल पे जवाहर की बरसातें, सिर पर मोर मुकुट धारे, बेतलकल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है, ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें, बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें। फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। दुनिया बनाने ऐसी किसने पुकारा है, दुनिया बनाने ऐसी किसने पुकारा है। बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है। सुखद संकल्प यही धारे, नयन वही नवयुग निहारे। है देवी राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। हो सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। ओ ऐसा मौसम है, 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 ऐसा मौसम है। कौन था ये? कोई दिव्य शक्ति थी, महाशक्ति। बस तुम्हें भी
ऐसी ही दुनिया बनानी है।
कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपके सुख शांति के लिए शुभकामना करता हूं। हे धरती पर बिखरे हुए लोगों, हम सभी लोग 7 साल के महाकठिन अथवा महाक्लेश के दिन से गुजर रहे हैं। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल दिवस के अवसर पर अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को एक क्षण के लिए तुरंत याद करें। क्यों? क्योंकि छठा सील खुल चुका है। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 2 का श्लोक 10 यह भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर के डर के कारण तू चट्टान में घुस जा और मिट्टी में जाकर के छुप जा, क्योंकि उस दिन ईश्वर लोगों को और धरती के राजाओं को दंड देंगे। तभी सब लोग, जैसे धरती के राजा, अच्छे लोग, कमांडर, अमीर, दयालु, बंधुआ लोग, सामान्य और आजाद लोग चट्टान तथा पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप जाएंगे। उस समय लोगों के सामने असहनीय दर्द उपस्थित होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हे पर्वत, तुम मेरे ऊपर गिर जा ताकि इसी के नीचे दब करके मैं मर जाऊं। बात जब कृष्ण भगवान का अवतार को याद को ताजा करने की है, तो मैं भी इस कार्य में आपका सहभागी बनूंगा। देवकी का जब प्रथम पुत्र जन्म लिया, तब वासुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार उस बच्चे को लेकर कंस के पास आए और कंस को दे दिए। उस एक दिन के बालक को लेकर कंस को दया नहीं आई, बल्कि कंस को घमंड हो गया। घमंड, यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कंस को मारने की भविष्यवाणी देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण है। कृष्ण, यह तो देवकी का पहला ही पुत्र है। कंस ने वासुदेव जी से कहा कि तू मेरे पास से इसको ले जाओ। मुझे तुम पर विश्वास है कि जब देवकी का 8वां बालक जन्म लेगा, तब उसको तुम मेरे पास लेकर के आना। ऐसा सुनकर वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर घर चले गए। इस घटना से देवलोक में फिर से खलबली मच गई। यह सब सारी करतूत देवताओं की है। देवताओं ने सोचा कि कंस देवकी का पहला बच्चा को क्यों छोड़ दिया। अब दूसरा बच्चा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा और 8वां भी होगा कि नहीं, भगवान जाने। भगवान आएंगे भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। देवलोक में देवताओं के दिल और दिमाग में टेंशन आ गया। टेंशन में वे विचार करने लगे। तब देवताओं ने सरस्वती देवी को पकड़ा कि तुम कंस के पास जाओ और कंस की इस जिह्वा पर बैठो और उस बच्चे को कैसे भी करके मरवा डालो। देवी सरस्वती ने कहा कि त्रेता युग में मैं आपकी बातों में आकर मैं राम जी को वनवास दिलवा दी। अब यह दूसरी गलती फिर मैं कभी नहीं करूंगी। रास्ते में नारद मुनि जी मिले। देवताओं ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपके बिना काम अधूरा पड़ा है। आपके बिना यह काम कोई कर ही नहीं सकता। नारद जी ने देवताओं से पूछा
कि आप मुझे साफ साफ बताइए वह अधूरा काम क्या है। तब देवताओं ने नारद जी से कहा कि एक बालक को, सिर्फ एक बालक को मरवाना है। नारद जी बोले, या तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, या तो हंसी मजाक में कहा जाता है कि भगवान का अवतार होगा। नारद जी देवताओं की इच्छा को समझ करके कंस के पास गए। यह काम नारद जी ही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि नारद जी ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और असुर लोग भी करते हैं। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। उसके उत्तर में नारद जी ने कंस से कहा कि तुम मुझको प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैंने तो तेरे जैसा मूर्ख आज तक किसी लोक में नहीं देखा। अगर यदि मूर्ख वाली बात कंस से कोई और बोला होता ना, तो कंस उसका सिर धड़ से अलग करवा देता। लेकिन कंस नारद जी को रिस्पेक्ट देता था, रिस्पेक्ट। इसीलिए कंस ने ऐसा नहीं किया। जब नारद जी ने कहा कि मैं तेरे जैसा मूर्ख किसी लोक में नहीं देखा, तो कंस कहता है कि मूर्ख क्या? नारद जी ने कहा, तुमने उस बालक को क्यों छोड़ दिया? कंस ने जवाब दिया कि हे नारद जी, वह तो देवकी का पहला पुत्र था और आकाशवाणी तो 8वें पुत्र की थी। नारद जी ने कंस से कहा कि विष्णु तेरा बाप है, बाप। विष्णु जब खंभा तोड़ के प्रकट हो सकता है, तो तू नंबर क्यों गिन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तू गिनता ही रह जाएगा और तू मारा जाएगा। रे भाई, तो नंबर के चक्कर वक्कर में मत पड़। तुम यह बता कि इस 8 उंगली में पहला उंगली कौन है और 8वां उंगली कौन है? बता। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई। उसने कहा, अरे यार, यह तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है। विष्णु का कोई भरोसा नहीं। नारद जी अष्टदल कमर लेकर गए थे। ध्यान से सुनो, हे भाई, ध्यान से सुनना। नारद जी अष्टदल कमल लेकर गए थे, 8 पंखुड़ी वाला कमल। नारद जी ने कंस को कमल दिखाया और उससे कहा, चल बता, इस 8वीं पंखुड़ी में 8वां कौन सा है? गोल गोल करके क्या गिनता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तो कंस के इस आंखों के सामने ट्यूबलाइट नहीं, मौत का खौफ चमकने लगा। खौफ किस चीज का? मौत का खौफ चमकने लगा। कंस ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा भूल कर दिया। कंस ने तुरंत अपने अनुचर को भेजा और उसने कहा कि जाओ और उस बालक को और उसके मां बाप को लेकर के आओ तथा उनको कारागार में बंद कर दो। उग्रसेन ने कहा, बेटा ऐसा मत कर। उसने अपने बाप उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। नारद जी ने कहा कि हम तो इसी काम के लिए आए थे। इसके बाद बहुत दुखद घटना घटी, यानी कि बहुत करुण घटना घटी। उस कंस ने एक दिन के बालक को माता पिता के सामने पत्थर पर पटक करके मार दिया। कारागार में देवकी का दूसरा बालक जन्म लिया।
दूसरे बालक का जन्म लेने की खबर सुनते ही उसने उसको भी पत्थर पर पटक कर मार डाला। कंस ने देवकी का क्रमशः तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी बालक को पत्थर पर पटक करके मार दिया। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। अरे भाई, दुख किसको कहते हैं? इस देवकी को देख कि देवकी के साथ क्या हुआ। क्या देखा आपने? देवकी का 6 बच्चे, सभी इतने सुंदर, प्राणों से भी प्यारा, और इन सबको उनके आंखों के सामने कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जबकि 8वीं संतान की भविष्यवाणी थी। आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो आप रोने लगते हो, आपको कोई गाली देता है तो आप रोने लग जाते हो। देखो देखो, ऐसा दुख है ईश्वर के मां बाप के जीवन में। देखो देखो, ऐसा दुख है ईश्वर के मां बाप के जीवन में। आप भगवान का बनना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं बना जाता ऐसे भगवान का जैसे तुम करते हो। पूर्व जन्म में भगवान के बाप ने भगवान को ही पुत्र के रूप में वरदान मांगा था। भगवान का प्रिय बनना चाहते हो ना, भगवान का होना चाहते हो ना। क्या देवकी के जैसा दुख सहन करने की शक्ति है आपके अंदर? ऐसे नहीं बना जाता है भगवान का। कितना दुख इनके माता पिता के जीवन में आया। हृदय में 6 बच्चे को खोने का दुख, हृदय में 6 बच्चे के खोने के दुख में पुत्र के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी प्रकट हो गए देवकी के गर्भ में। जब बलराम जी आए तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और उनसे कहा कि बलराम जी देवकी के गर्भ में है, उसको सेफली निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। भगवान और उनकी माया क्या नहीं कर सकता। देवकी के गर्भ से बलराम को निकालकर रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रख दिया। और फिर आगे चलकर बलराम जी का जन्म हुआ। यहां तो देवकी को लगा कि मेरा गर्भ ही गिर गया। फिर से देवकी का जीवन दुख और शोक में भर गया। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जब ईश्वर के माता पिता के जीवन में इतना बड़ा, इतना अधिक दुख आया, फिर भी ईश्वर के लिए उनकी भक्ति बढ़ती गई। जैसे जैसे देवकी और वासुदेव का दुख बढ़ाना, वैसे वैसे इन दोनों के जीवन में ईश्वर के लिए भक्ति और भी बढ़ती चली गई, और भी बढ़ती चली गई, और भी बढ़ती चली गई। लेकिन आपके साथ उल्टा ही होता है भाई। जब दुख बढ़ता है तब आप कहते हैं कि छोड़ो यह पूजा पाठ, छोड़ो इस भगवान को, छोड़ो इस नियम पूजा पाठ के। हम पूजा करते थे सुख के लिए और हमको दुख होने लगा। या गुरु झूठा, या भगवान झूठा, या वेद पुराण झूठा, सब धर्म ग्रंथ झूठा। छोड़ो इस भगवान को और इस पूजा पाठ को। आप लोग तो भगवान को और पूजा पाठ को छोड़कर ही भाग जाते हो। ऐसे करने से नहीं मिलते भगवान, नहीं मिलते भगवान। आजकल स्कूल और कॉलेज में भी पास होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, मालूम है? ठीक उसी तरह ईश्वर के दरबार में भी जाने के लिए भाई परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा। आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, यह तो भगवान की परीक्षा है।
आप इस बात को जान लीजिए कि व्यक्ति जितना ही बड़ा होता है उसके जीवन में उतना ही बड़ा दुख आता है। दुख जब जीवन में बहुत बड़ा दुख आए तो समझो कि आपकी भक्ति भी बहुत बड़ी है। यह सच है कि जब आपकी भक्ति बहुत बड़ी होगी ना तो आपके जीवन में परीक्षा भी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी को देखकर प्रश्न पत्र दिया जाता है। नर्सरी, केजी और एलकेजी वाले बच्चों को 8वीं क्लास वाला प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता। कॉलेज वाले बच्चों को नर्सरी वाला प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता। भक्ति के अनुसार अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाता है। मैं आपसे सच कहता हूं कि यदि भक्ति करते हुए आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी और समस्या आए तो भक्ति छोड़ो नहीं, बल्कि उस भक्ति को बढ़ा दो। भगवान भी देखेंगे कि इस माटी का बना हुआ व्यक्ति जो दुख तकलीफ पाने के बाद भी यह मेरा नाम लिए जा रहा है। ऐसा ही हुआ आज से 5124 वर्ष पहले मथुरा में। बताओ, देवकी और वासुदेव जी ने कंस को क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था वासुदेव और देवकी ने कंस का कि इतना दुख और इतना तकलीफ इस देवकी और वासुदेव के जीवन में दे दिया। लेकिन जैसे जैसे दुख अधिक बढ़ता गया वैसे वैसे इन दोनों के जीवन में भी भक्ति बहुत बढ़ती चली गई। इन दोनों की भक्ति देखकर इस ब्रह्मांड नायक भगवान का सिंहासन डोलने लगा, ऐसे 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 डोलने लगा। ब्रह्मांड नायक भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में इतना दुख उठा रहा है, अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा। कांप उठा ब्रह्मांड नायक भगवान का दिल, डोल उठा ब्रह्मांड नायक भगवान का दिल और भूल गए सारे विधि विधान को। वो तुरंत देवकी के गर्भ में आ गए और मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुए। आज भी मेरे जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ, इतनी परेशानी आई है तो क्या इस ब्रह्मांड नायक भगवान का सिंहासन नहीं डोल रहा है? जरा विचार करो। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण बार बार यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं नारायण हूं, तो क्या अब वह घड़ी आ चुकी है कि मैं मनुष्य के रूढ़िवाद दिमाग के खंभे को तोड़कर नारायण के रूप में प्रकट हो जाऊं और अपनी प्रकृति से सबको अवगत करा दूं? तब सब लोग जान पाएंगे कि यह ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ही नारायण है, जो अपने बच्चों को अपने साथ उंगली पकड़कर हनोक की तरह बिना मरे अपने परम धाम को ले जाने आया है। तथास्तु तथात। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण पूरी दुनिया को चेतावनी देने के क्रम में आपसे यह कहता है कि हे मनुष्य, आप जरा सोचो कि जिस वैश्विक विध्वंस युद्ध की मैं आज तक चेतावनी देता रहा हूं, क्या उस तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है? वर्तमान समय में दुनिया के दो छोर पर तनाव बेहिसाब है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन वार चल रहा है, तो वहीं
दूसरी ओर चीन ताइवान में युद्ध की घंटी बजा रही है। एक ओर जहां पूर्वी एशिया में ताइवान और चीन के बीच लिखी जा चुकी है विश्व युद्ध की पटकथा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का अगुवाई करने वाला नाटो देश, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है अमेरिका ने और बन चुका है अमेरिका का जानी दुश्मन, खासकर चीन और रूस। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 77 साल बाद फिर से न्यूक्लियर बम फटने वाला है? समुद्र से अंबर तक परमाणु विनाश की तैयारी हो चुकी है। इसका आधार है महाशक्तियों का घेराबंदी। आगे कुछ भी जानने से पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका और रूस के खेमे में कौन कौन है। रूस है, चीन है, ईरान है, वेनेजुएला है, बेलारूस है, थाईलैंड है। दूसरी तरफ अमेरिका है, नाटो देश है, ताइवान है, यूक्रेन है। दोनों पक्षों की ओर से तैयारी जबरदस्त है। कली पुरुष अपने प्रतिनिधियों को पूरे संसार में भेजकर पूरे धरती के लोगों को अपने बस में कर रखा है और अब वह कली पुरुष छिप कर बैठा है तथा वह मृत्यु का तांडव नृत्य देखना चाहता है। एक दिन तो कली पुरुष के शासन का अंत होगा, लेकिन अभी नहीं। आज के दिन वीरवार को अर्थात दिनांक 18 अगस्त 2022 को मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण कली पुरुष को ललकार कर कह रहा हूं और यह कहता हूं कि तेरे शासन का अंत करने वाला इस धरती पर आ चुका है और वह कोई नहीं बल्कि वह है ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण। वह ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण कली पुरुष के शासन को नष्ट कर धरती पर धर्म को चारों चरण में लाएगा। तब से होगा सतयुग का प्रारंभ। हे धरती पर बिखरे हुए लोगों, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं रेडियंट उपदेश ऑफ गीता की एक वास्तविक व्याख्या। क्या विशेष है गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है केवल एक कृष्ण। बाद बाकी आप सब निमित्त हैं। आज जो मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपको जो उपदेश दूंगा, आपको यह ज्ञान आज के जमाने में आपको रास्ता दिखाएगा और आप आसानी से गीता को समझ सकेंगे और आप अपने प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएंगे। हे मनुष्य, गीता उत्तर है, उत्तर दुनिया के लोगों के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब गीता में नहीं दिया गया हो। आपके दिल और दिमाग में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेश या किसी भी तरह की दुविधा हो, सबका एकमात्र उत्तर है गीता।
हे मनुष्य, गीता उत्तर है दुनिया के लोगों के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब गीता ने नहीं दिया हो। आपके दिल और दिमाग में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेश या किसी भी तरह का दुविधा हो, सबका एकमात्र उत्तर है गीता। गीता में अर्जुन के स्थान पर आप अपने आप को अर्जुन समझिए, अर्जुन। क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, उसकी हर समस्या आपकी भी परेशानी है, और हर परेशानी का हल है, वो है श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ सारथी ही नहीं मानिए, बल्कि उन्हें जीवन का भी सारथी मानिए, मानिए, मानिए। उनके कहे अनुसार यदि आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी सारी परेशानी आसानी से हल हो जाएगी और आप सारी परेशानी को आसानी से पार कर जाएंगे। तो आइए अब मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपको ले चलता हूं रेडियंट उपदेश ऑफ गीता चैप्टर 1 के सफर में, जिसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां से शुरू होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहता है कि युद्ध में क्या हो रहा है। उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही साथ यह भी जानना चाह रहा है कि पांडु पुत्र की सेना क्या कर रहा है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन है। उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, अर्थात अर्जुन का दुख, अर्जुन की समस्या और उनका धर्म संकट। तो आइए अब सुनिए अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधा है, वह देख नहीं सकता है, लेकिन वे केवल आंख के अंधे हैं, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण है। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध का चुनाव किया है, युद्ध का चुनाव। लेकिन यह भी जानते हैं कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। याद कीजिए, अपने जीवन में जब आप गलती कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके किए जा रहे कर्मों का नतीजा अच्छा नहीं होगा। ठीक ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा है। वे भी इसी डर और इसी आशंका में घिरे दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन
पांडवों की सेना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध स्थल से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। संजय जो देख रहे थे वे वही बात धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे युद्ध का सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। यह संजय के दिव्य दृष्टि का कमाल था कि आज आप लोगों को गीता सुनने को मिला। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का अर्थ होता है कि किस विशेष प्रकार से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह उस सेना के बीच एक ऐसा व्यूह है जिसमें उस सेना के बीच घुसना असंभव हो। अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा, कभी बाहर नहीं आ सकेगा। हे मनुष्य, जब आप शत्रु या समस्या को देखेंगे तो वह आपको बैरी और विकराल दिखाई देगा और आपके मन में यह डर भी बना रहेगा कि किसी तरह आप इसमें घुस भी गए तो इसका परिणाम क्या होगा। क्या बाहर आ पाएंगे? क्या आप जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। दुर्योधन पांडव के महान सेनाओं का नाम लेता है। जब भी युद्ध होता है तब सेना के योद्धाओं को जांचते हैं, परखते हैं। ठीक वैसे भी दुर्योधन भी कर रहा है। आई बात समझ में? दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान कास्कीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी हैं महारथी। इससे पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसा कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। हे मनुष्य, समस्या के सभी पहलुओं से आपको वाकिफ होना चाहिए कि समस्या के हर पार्ट के बारे में आपको मालूम हो। समस्या के सभी पहलुओं से आपको वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट से आपको वाकिफ होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेनाओं को तो आपने देख लिया, अब आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए
शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपने पक्ष के सेना के जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अपने पक्ष में सोचने की आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट है। दुर्योधन आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करता हूं। आप किन किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप समस्या पर विजय प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, ठीक उसी तरह से स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। आकलन सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। हे मनुष्य, जिस तरह से आप आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, ठीक वैसे ही दुर्योधन दोनों सेनाओं को देखते हुए दोनों सेनाओं के बारे में बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझ करके ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतनी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कुछ सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में निपुण एवं चतुर हैं। दुर्योधन के केवल एक इशारे पर उसकी सेना के सूरवीर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। हे मनुष्य, दुर्योधन के साथ सूरवीर थे जो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। जब आप अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? कौन? जरा सोचिए। आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत और आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। हे मनुष्य, दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह के द्वारा उनकी रक्षित सेना सब प्रकार से अजय है, अजय। और वहीं भीम के द्वारा रक्षित सेना जीतने में सुगम है, सुगम। दुर्योधन यह कहना चाहता है कि भीम की सेना आसानी से जीत सकते हैं, आसानी से। यहाँ पर दुर्योधन घमंड दिखा रहा है। लेकिन हे मनुष्य, आपको दुर्योधन के जैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि दुर्योधन जानता
कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, तो फिर युद्ध क्यों करता? बोलो। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, तो यह आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि यदि घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है भाई, आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि हर एक को अपनी अपनी मोर्चों पर, अपने अपने जगह पर निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। इसका तात्पर्य यह है कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए तथा युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, जैसे कि दुर्योधन और उसके सेना के लिए भीष्म पितामह के हारने का रिजल्ट था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब है कि युद्ध हार नहीं सकते, कभी नहीं। हे मनुष्य, अपने सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें। होने वाले युद्ध की शंखुद घोषणा होगी। कौरवों में सबसे बड़े, सबसे अधिक वृद्ध, सबसे अधिक प्रतापी भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर में सिंह के ऊंची दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न हो गई। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा भीष्म पितामह ने किया और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। युद्ध सुखदायी नहीं होता है, नहीं। युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं होता है। युद्ध भयंकर तथा पीड़ा देने वाला होता है। ये युद्ध इससे पहले लड़े गए युद्ध से भयानक होगा। यह सबसे अधिक पीड़ा देने वाली होगी तथा यह युद्ध संपूर्ण विश्व के इतिहास में सबसे अधिक भयानक होगी। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। इस बाजे का स्वर संगीतमय नहीं बल्कि बहुत ही डरावना था, डरावना। हे भाई, युद्ध मनोरंजक नहीं होते। इसलिए यदि युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने तरीके के हालात को लेकर आती है और उन्हीं हालात के आधार पर ही मनुष्य को तैयारियां करनी पड़ती है, तैयारियां। अब बारी थी पांडव पुत्रों की, सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तब दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से। हर पक्ष अपने विजय की आशा में खुद को तथा अपनी सेना को भरोसा देता है, भरोसा। आज के समय में अगर आप खुद के लिए यदि सोचे हैं शंख बजाने की उपमा के बारे में
यदि सोचें तो हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं जो आपको प्रोत्साहित करे। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीम ने अपना पौंड्रा नामक महाशंख बजाया। हे मनुष्य, अपने जीवन में इसी तरह से आप भी अपने युद्ध और अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ लोगों के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए हो जाइए तैयार। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। हे मनुष्य, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। हे मनुष्य, क्या आपने देखा कि सभी आदमी अपना अपना युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग अलग ध्वनि, अपना एक अलग अलग अस्तित्व। युद्ध का हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उपस्थिति। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए, शंख बजाए। हे मनुष्य, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे बिरला मौका कोई कैसे छोड़ सकता था? आपके लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप अपने जीवन में एक चुनौती माने, एक चुनौती। आप जो भी माने, लेकिन आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें, तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा कर सबको अपने उपस्थित होने का आभास करवा रहा है, आभास करवा रहा है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा करके डराने का प्रयास करते हैं ना, ठीक वैसे भी यहां भी वही हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश तथा पृथ्वी को भी गूंजते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण कर दिया। जब आप हुंकार भरते हैं, अपना प्राइड दिखाते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध लड़ने जा रहा है। आप चाहें इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से भी मिलने के लिए जाएं, आपका हुनर और आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी कौशल से प्रभावित हो जाए, प्रभावित हो जाए। हे मनुष्य, अर्जुन अपनी मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हैं। इसके बाद अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत का अर्थ होता है अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता।
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपनी सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो इसका अर्थ है कि धर्म उसके साथ है और जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। हे मनुष्य, आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है कि युद्ध कोई भी हो सकता है, युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध के सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्णा, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी सेनाओं को भली प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध लड़ना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। आप लोगों को भी इसी तरह समस्याओं के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, दुर्बुद्धि। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हठ के चलते ही ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है। दुर्योधन को साथ देने के लिए जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़ा होकर देखना चाहते हैं। हे मनुष्य, यह जरूरी नहीं है कि आपका शत्रु सही हो सकता है कि उकसाने वाले गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाह रहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और युद्ध तो उसी हालत में करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छी तरह से देख चुके हों, परख चुके हों और जान चुके हों। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहते। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को किस प्रकार खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, इन कौरवों को देख। हे मनुष्य, पार्थ अर्जुन का ही नाम है। हे मनुष्य, पार्थ अर्जुन का ही नाम है। पार्थ उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है, गिरने ही वाला। पार्थ आप सभी हो सकते हैं और यदि आप अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए भगवान कृष्ण भी दूर नहीं होते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ना ही उनकी गीता दूर होती है। कुंती का एक नाम पृथा भी था, जान लो। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के बीच में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। इसीलिए तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया हो। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे संबंधी एक तरफ थे और आधे संबंधी दूसरी तरफ थे।
हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या फिर अर्जुन का। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ और पांडव पुत्रों के साथ बिताए। सारे सगे संबंधी ये एक ही तो हैं, दोनों पक्षों में अपने ही लोग तो हैं, किंतु अब अपने के ही दो पक्ष बन गए हैं। दो पक्ष, उनमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वह उसके शत्रु हैं और अब अर्जुन को उसके साथ लड़ना होगा। अर्जुन के एकदम करीबी अपने अर्जुन के साथ लड़ने के लिए सामने तैयार खड़े हैं, तैयार। लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से निमग्न होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरू होता है अर्जुन का शोक, अर्जुन के विषाद, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। भगवान कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित करती रहे और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, परंतु युद्ध करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही आप सबके साथ भी होता है। ऐसी ही शंका का समाधान भगवान कृष्ण गीता के द्वारा करते हैं। युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी ये स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ही नहीं रह गया हो और मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, कंपन। ना जाने कितनी बार ही हम सबके साथ ऐसा होता है। जब युद्ध के सम्मुख होते हैं ना, तभी ऐसा जान पड़ता है कि सारी शक्ति ही खत्म हो चुकी है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख हमारे दुख से अलग नहीं है, उनका दुख हमारे दुख से अलग नहीं है। चाहे आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो अथवा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, जीवन में कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक नहीं हैं, हम युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से गाड़ी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उसका मन भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। इसीलिए अर्जुन खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश हो रहा है। युद्ध से पहले अगर आप कांपता हुआ पाते हैं, डर से आपका मुंह सूख रहा हो, तो आपको निश्चित ही लगेगा कि आप हारने वाले हैं। भाई, आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखाई देती है, चारों तरफ अंधकार महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी कि अपनों का जान लेके मुझको क्या फायदा होगा।
अर्जुन बात को स्पष्ट रखता है। किसके सामने? भगवान कृष्ण के। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्णा, मैं ना तो विजय चाहता हूं, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य और ना ही मैं सुख को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से और ऐसे जीवन से क्या लाभ? इस विषाद, इस शंका, इस डर, इस घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार। उनको सुख, भोग तथा राज्य कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन ऐसे भयभीत हो गया है और ऐसा डर गया है कि वह दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय होने वाले इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को आप भी पहचानना, ताकि ऐसी अवस्था में आप भी वो कीजिए जो भगवान कृष्ण बताएंगे। अर्जुन ने कहा कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मनुष्य, जरा सोचो कि जीवन का हर युद्ध, हर काम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारे सुख शांति, सारी भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है। और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी और क्या दुविधा हो सकती है? वे ही आपको मारने के लिए खड़े हैं और आपको उन्हें मारना पड़ेगा। कैसी दुनिया की यह सोच है, यही उलझन है अर्जुन के मन में। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, उनके ताऊ, उनके चाचे, उनके लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन हर संबंधी को बहुत करीब से पहचान रहे हैं और पहचान करके उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं शत्रु को मारूंगा या उसे नहीं मारूंगा? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है। एक सैनिक अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपको उसे भी मारना ही होगा। यही तो दुविधा है अर्जुन की। अर्जुन जो बता रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे मनुष्य, सुना आपने? तीनों लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर इसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो चीज नहीं चाहिए। हे मनुष्य, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आता है जब वो आपको सबसे प्रिय न हो, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप प्यारी चीजों को छोड़ सकते हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अर्जुन ने आगे कहा कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, पाप। तब हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई, चाहे बड़े लोग ही क्यों न हो, लेकिन हैं तो अपने। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था। भाई भाई आमने सामने एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। हे मनुष्य, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता।
महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना। क्या आपको अपने परिवार के लोगों को मारकर आपको सुख मिल सकता है? बोलिए। महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट उपस्थित हो जाए तो आप क्या करेंगे? अर्जुन ईश्वर से पूछते हैं कि हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कुटुंब को मार करके हम कैसे सुखी होंगे? क्या विडंबनाएं हैं। हे मनुष्य, लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग और कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करते हैं? शत्रु गलत कर रहा है, वह इस बात को नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं ना। एक समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से नहीं हटना चाहिए? अगर युद्ध से हट गए तो उससे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ भी नहीं बचता। कुल का नाश हो जाने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वे कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म और परंपरा नष्ट हो जाती है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत अधिक फैल जाता है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन का कहना यह है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में पाप बहुत बढ़ जाता है। यह परिवार ही है जो आपको जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। हे मनुष्य, यदि आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज तो पतन की ही ओर जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य नहीं है। अगर ये स्त्रियां दूषित अथवा करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहता है कि हे कृष्णा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर, यहाँ पर वर्ण संकर का अर्थ है कि जहां वर्ण या समाज के मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीकों से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वे सब कुछ खत्म कर देती है। खत्म। इसीलिए समाज के नियम बहुत सोच समझ कर बनाए हुए होते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को हजारों वर्षों के बनाए गए नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात के संबंध में भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है वहां धर्म का नाश निश्चित ही है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया कि कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपना
जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, समाज अपनी मनमानी करेगा, यदि नियम को नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसा समाज रह जाएगा? समाज का नाम तो कायदे और कानून का है, जहां सम्मान से, बिना किसी डर से एक साथ रह सके। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा आप लोग सुनते आ रहे हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि यदि किसी कुल का नाश हो जाता था तो वह मान जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि ऐसा मैं भी सुनते आया हूं कि धर्म की रक्षा, कि धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते, जो व्यक्ति धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते, वे सीधे नरक को जाते हैं, सीधे नरक को। इसे आप भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी महापाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। हे मनुष्य, दुर्योधन जैसा भी है, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है ना, तो क्या उनके लिए ये युद्ध ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद मां भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ उम्मीद की जाती है। तो क्या अगर समझदार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो क्या उसकी गलती की माफी उसको मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। हे मनुष्य, आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए, उसके बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा, क्या आप उसी को मार पाएंगे? इससे अच्छा है आपको लगेगा कि उसके हाथ से आप स्वयं को मारे जाएं, आप स्वयं को मरवा लें। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय तो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का आंखों देखी वर्णन कर रहे हैं। वह बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हे मनुष्य, ये था रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता का पहला अध्याय। अब इस अध्याय में तो समस्याओं का वर्णन है और मोह की महिमा है, जिसके चलते अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन अगले अध्याय में, अर्थात अध्याय 2 में, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे बताऊंगा कि आपको कैसे धर्म युद्ध लड़ना चाहिए और कैसे आप अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आएंगे। अब अगले वीरवार को मैं फिर आपके सामने आऊंगा रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता का दूसरा अध्याय लेकर करके। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।